Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about how you can predict the price trend in future. Either it can be for the stocks, it can be for the indices, for the Nifty, Bank Nifty as well. But before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link of Concept web application. After successful registration, you will get some free tools there that you can use for your trading. Okay. In the application, there is a learn section and video library. So we have made multiple videos on Pro Plus tools as well as on the strategies. So you can go and watch them. They are available in multiple languages as well. Now at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can go in the profile section, and in the support, we have our contact number as well as our email ID. So you can contact us and we will be there to sort your queries out. Okay. Now, when I'm talking about how you can predict the price movement in future, so for that there is a tool in Concept. So for that you have to go in the analyze section, and in the price seasonality you will be getting the data of Nifty और stocks. ठीक है, सबका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. Now how we can use this tool? So for that you can see some lines here, but it will be very much confusing for you. So there is a tabular form also. Right now in the tabular form, if I'm analyzing Nifty, so Nifty will tell me the overall scenario of the market कि मार्केट में क्या चल रहा है ये मेरे को बता सकता है, because Nifty is the standard indices जिसको हम यूज करते हैं मार्केट में प्राइस चेक करने के लिए या फिर मार्केट में सेंटिमेंट चेक करने के लिए. ठीक है. नाउ इन निफ्टी आई कैन चेक इन जनवरी मंथ्स आई एम एनालाइजिंग द डेटा ऑफ 2024 से पिछले 5 साल तक का. तो यू कैन सी फ्रॉम 2020, 2021, 22, 23, 24. Okay. Now in 2024 I can see in the January month the average return of Nifty in the month of January it is in negative, right? In the 2023 it is also in negative. 2022 I can also see it is in negative. 2021 negative, 2020 negative. It means now I can predict when I will jump into 2025. So in the month of January there are high probability that the Nifty will be negative, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो जनवरी के महीने में हमेशा मुझे नेगेटिव देखने को मिला है. Right. Similarly, from this data I can analyze if I am getting a positive sentiments in the month of November. How? I can see in 2020 I can see positive 11.85 returns in Nifty. I can see in minus 3.85 था, no problem. In 2022 4.56, 5.07 in 2023. एंड मेरे को देखने को मिला है कि अगर मैं इसका एवरेज देखूं, सो एवरेज रिटर्न भी मैं यहां पे देख रहा हूं इन दिस कॉलम. द मंथली एवरेज इन द नवंबर मंथ इज 4.41. ठीक है. सो अगर मैं इन सारे डेटा को नहीं देखना चाहता, सो आई कैन जस्ट फोकस ऑन दिस मंथली एवरेज एंड आई कैन सी द मंथली एवरेज ऑफ नवंबर इज इन पॉजिटिव. इट मींस देयर आर हाई चांसेस दैट इन द नवंबर द निफ्टी विल बी इन पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है. अगर मैं देखूं इन द मंथ ऑफ मार्च में आई कैन सी कि मेरा मंथली एवरेज इज नेगेटिव. तो मंथली एवरेज नेगेटिव में है. क्यों? क्योंकि 2020 में मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला था नेगेटिव, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ था. ठीक है. तो सिर्फ एक ये कंडीशन है जिसकी वजह से मेरा जो मार्केट है वो मार्च के महीने में निफ्टी इज शोइंग मी नेगेटिव. अदरवाइज इफ आई कैन सी इन द ऑल 4 ईयर्स माई मार्केट इन मार्च वॉज पॉजिटिव. राइट. सो यू कैन सी सम एक्सेप्शन ऑल्सो. ठीक है. तो इसको हटा देंगे तो मार्च का महीना भी मेरे लिए पॉजिटिव में रहेगा. ठीक है. अदरवाइज अगर मैं देखूं अप्रैल में, तो इन अप्रैल ऑल्सो माय जो निफ्टी दिख रहा है मंथली एवरेज इज इन पॉजिटिव. राइट. सो ओनली बाय सीइंग इन द मंथली एवरेज आई कैन एनालाइज व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ निफ्टी. ठीक है. या फिर मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है इफ द मार्केट विल बी इन बेरिश साइड और इन बेरिश साइड. राइट. ओके. तो यहां से आप अपना एक व्यू बना सकते हो. ठीक है. एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हो मार्केट के मूवमेंट की. अगर मैं भी अक्टूबर में करूं, राइट नाउ द अक्टूबर इज इन रनिंग. ओके. एंड द नेक्स्ट मंथ इज नवंबर जो आने वाला है. सो आई कैन सी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मैं यहां पे थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं. आई कैन सी पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न. नेगेटिव रिटर्न 2023 में दिखे थे एंड करंटली राइट नाउ द मार्केट इज ऑल्सो इन नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव में है. तो कहीं ना कहीं मेरे जो सेंटिमेंट्स है वो अभी क्या है, मेरे दोनों मिले हुए हैं कि मे बी इट विल बी इन द पॉजिटिव एंड बेरिश. पॉजिटिव भी हो सकता है और इट विल बी इन द नेगेटिव.
राइट। तो अभी अक्टूबर के देख के तो मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग स्टेट में हूं कि मे बी इट विल बी इन दी पॉजिटिव और इसमें प्राइस के मूवमेंट को देखते हुए, ठीक है। बट अगर मैं नवंबर या फिर अगर मैं सितंबर का भी देखूं तो सितंबर में भी मेरे को पॉजिटिव दिखे हैं, तो सितंबर में आई वाज श्योर कि इसमें पॉजिटिव होने वाला है। और कहीं ना कहीं नवंबर आई एम ऑल्सो 80-90% श्योर कि मार्केट द निफ्टी विल बी इन दी पॉजिटिव साइड, ठीक है। कहीं ना कहीं अक्टूबर में थोड़ा सा भी नेगेटिव दिख रहा है, बट इन दी नवंबर चांसेस दैट द निफ्टी विल बी इन पॉजिटिव, ठीक है। Now, if I will select here the chart of, if I will select here any stock, so for example, I am selecting TCS here. So TCS में सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो इन दी TCS आई कैन ऑल्सो सी, अगर मैं एवरेज रिटर्न देखूं जून का, तो जून में मेरा लगभग सब पॉजिटिव है एक्सेप्ट 2022, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा कि जो मेरा जून मंथ है, तो इन द जून मंथ माय TCS इज परफॉर्मिंग गुड, ठीक है। इट कैन बी ऑफ वेरियस साइकिल बिकॉज देयर आर वेरियस डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, बजट होता है, हमें पता है कि फैब के महीने में मेरा बजट आने वाला है, ठीक है। फिर कुछ डिफाइंड टर्म्स होते हैं कि क्वार्टरली रिपोर्ट इस टाइम पे आने वाली होती है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज प्राइजेस फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न, right, and that is what it is known as the seasonality of the price, ठीक है। now similarly with the seasonality of the price, ठीक है, you can just analyze the monthly average and you can make a view of the price कि how the price will move, ठीक है। now similarly there is one more term that is the IV. now if you want to know like how much momentum will there be in the market, so that will be given by the IV, ठीक है। तो अगर IV का सीजनैलिटी में देखूं यहाँ पे, सो अगेन आई कैन गेट द डेटा ऑफ TCS, या फिर अगर मैं यहाँ पे निफ्टी लगाऊं तो निफ्टी का मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। आई कैन सी द मैक्सिमम, अगर मैं यहाँ पे देखूं मंथली एवरेज, तो आई कैन सी कि फैब के महीने में बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ऑल्सो इन द मार्च, तो देयर इज द मैक्सिमम IV, ठीक है। तो इन केस इफ आई एम गेटिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन February, इट मीन्स पॉजिटिव मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एंड IV इज ऑल्सो शोइंग मी अ गुड मंथली एवरेज, इट मीन्स इन द मंथ ऑफ February देयर विल बी अ गुड प्राइस मूवमेंट, द प्राइस विल बी इन द बुलिश डायरेक्शन एज वेल एज देयर विल बी मोमेंटम इन द प्राइस, तो एज अ बायर इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी, ठीक है। अगर कहीं पे मेरे को जैसे यहाँ पे 19 का मिल रहा है, तो 19 का अगर मेरे को मंथली एवरेज मिल रहा है, इट मीन्स इट इज लेस एज कंपैरिजन टू द अदर्स, राइट। तो इस महीने में जो नवंबर का महीना होगा, मैं देखूंगा कि TCS में थोड़ा मेरे को प्राइस में कम मूवमेंट दिखने को मिलेगा, मे बी इट कैन बी बुलिश, मे बी इट कैन बी बेरिश, बट प्राइस में मूवमेंट कम होगा, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा देखूं 32, तो इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, आई कैन सी अ गुड मूवमेंट इन द प्राइस, राइट। सिमिलरली यू कैन एनालाइज इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, व्हेन आई विल कंबाइन माय IV एज वेल एज विद माय प्राइस, ठीक है, तो देन आई विल गेट अ रीडिंग कि इफ आई वांट टू गो फॉर द बुलिश साइड और इफ आई वांट टू गो विद द बेरिश साइड, किसको देखते हुए, प्राइस को देखते हुए, राइट। देन if I will go as a buyer or if I'll trade as a seller, that will be given by the IV, जो मैं अभी देख रहा हूं implied volatility. if the monthly जो average है, तो average में if I'm getting a good IV, so I will go with the as a buyer in the market, ठीक है। अगर मेरे को कम दिख रही है, तो then I will enter as a seller because जितना मार्केट में मूवमेंट कम होगा, so that will be in my favor because थीटा डिके होगा, and as a seller थीटा जो होता है वो सेलर को फेवर करता है, ठीक है। सो आई होप आज का जो सेशन है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। टुडे वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन प्रिडिक्ट इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन विद द प्राइस, व्हाट विल हैपन विद द IV, एंड ईदर यू हैव टू ट्रेड एज अ बायर और एज अ सेलर इन द अपकमिंग मंथ्स, ठीक है, जो आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं या फिर इनिशिएट करना चाहते हैं। यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ गुड डे।